Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to finish off this chapter demand. So the last topic of this chapter is the various reasons for the shift in the demand curve. The shift in the demand curve refers to the rightwards or the leftward shift. So I told you in the last class that the shift in a demand curve, that is the leftward or the rightward shift, happens when there is a change in a demand and not a change in a quantity demand. So here are various reasons I have mentioned down that the reasons due to which the demand curve shifts is the change in the price of a substitute goods, the change in the price of complementary goods, the change in the income of consumers, the change in taste and preferences and expectations. So we are going to study the three reasons in a detailed form, that is the change in the price of substitute goods, change in the price of complementary goods, and change in the income of goods. This head, the change in the income of consumers, have two mini heads, two subheads, that is normal goods and inferior goods. So let's start. Okay, so first we have the change in the substitute and the complementary goods. Okay, so first we are taking the substitute goods. Substitute goods are those goods which can be used in the place of one another for the satisfaction of a particular want, like tea and coffee. For example, if the market has shortage of tea, the consumer can buy coffee in the place of tea. So, substitute good refers to those goods which can be used in the place of each other. For example, if the market has a shortage of Coke, the consumer can buy Pepsi in its place. So these Coke and Pepsi are two substitute goods. While talking about the shift in them, we have the increase in the price of substitute goods and the decrease in the price of substitute goods. So first we are taking the case of increase in the price of the substitute goods. When the price of substitutes, say coffee, rises, the demand of the given commodity tea also rises from OQ to OQ1 at its same price of OP. ओके, इसको हम सिंपलर टर्म्स में मैं करती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी यहाँ पर कॉफ़ी है और यहाँ हमारी टी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज़ हो गया 10 से 12 तक. अगर कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज़ होगा मतलब कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी. लेकिन अगर कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो टी का डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 10 रुपीज़ पे हमारी 5 टी थी तो 12 रुपीज़ पे हमारी 8 टी बिकेगी, क्योंकि कॉफ़ी और टी सब्स्टिट्यूट गुड्स है. अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाएगा, कंज्यूमर्स वो बाय ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि उसका प्राइस बढ़ चुका है. अगर उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में तो, और वो भी कांस्टेंट प्राइस में, या जो प्राइस लोअर है कॉफ़ी से, तो कंज्यूमर लोअर प्राइसेस पे जाएंगे. तो इसलिए दे हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम, दैट इफ़ द प्राइस ऑफ द कॉफ़ी इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ द टी इंक्रीजेस टू. ये है प्राइस और ये है यहाँ पर इसकी डिमांड. तो ये हमारा यहाँ पर यही कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा प्राइस इंक्रीज़ हो गया, लेकिन किसका इंक्रीज़ हुआ है? हमारा टी का इंक्रीज़ हुआ है. तो टी के डिमांड कर्व में, मतलब डिमांड उसकी, टी के डिमांड में हम टी की डिमांड नहीं शो करेंगे क्योंकि हम कॉफ़ी की डिमांड नहीं शो करेंगे. आई एम सो सॉरी अबाउट इट. अगर जैसे हमारी कॉफ़ी का प्राइस बढ़ चुका है और टी की डिमांड बढ़ी है, तो टी की डिमांड बढ़ी है तो शिफ्ट हमारा कौन से कर्व में आया है? टी के डिमांड कर्व में शिफ्ट आया है. तो जिस डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है हम वो वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं. तो अगर हम टी का डिमांड बढ़ी है तो हम टी की वो दिखाएंगे, क्योंकि हमारा टी का कॉफ़ी कांस्टेंट है तो वो ओपी पर ही रहेगा जो उसका पहला प्राइस था, क्योंकि प्राइस तो हमारा कॉफ़ी का बढ़ा है, लेकिन हम कॉफ़ी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा शिफ्ट जो है वो डिमांड कर्व में है. इसलिए हमारा जो टी की डिमांड है वो कांस्टेंट रहेगी ओपी पे. पहले अगर OQ फॉर एग्ज़ाम्पल ये 5 है, मतलब 10 रुपीज़ हमारा प्राइस है और फॉर एग्ज़ाम्पल उस टाइम पे क्वांटिटी 5 है, उसका प्राइस तो 10 ही रहेगा. तो अभी भी
बट उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी टू 12। क्यों? क्योंकि हमारे कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज़ हो गया है, और अगर कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज़ हो गया है तो हमारे टी की डिमांड भी इंक्रीज़ होएगी ड्यू टू द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम। सो हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जब भी डिमांड इंक्रीज़ होती है तो डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होता है, और डिमांड डिक्रीज़ होती है तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। तो हमारा डिमांड शिफ्ट हो जाएगा डी से टू डी डैश एंड डी डैश। सेकेंड हमारा केस आता है डिक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ द सब्सिट्यूट गुड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉफ़ी का हमारा प्राइस था 12, ये हो गया 10, तो टी की डिमांड भी हमारी हो जाएगी 8 से 5। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी का अगर प्राइस डिक्रीज़ हो गया है तो लोग तो कॉफ़ी बाय करेंगे, लोग टी क्यों बाय करेंगे? इसीलिए हमारी जो टी की डिमांड भी है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि लोग the consumers will buy more of the product commodity coffee than tea. सो यहाँ पर भी हमारा किसकी डिमांड डिक्रीज़ हुई है? टी की डिमांड डिक्रीज़ हुई है, इसलिए हम टी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे। तो यहाँ पर भी प्राइस तो कांस्टेंट है टी का, ओ पी से प्राइस हमारा यहाँ भी कांस्टेंट है। तो पहले अगर ओ क्यू हमारी कमोडिटी सेल हो रही थी, दैट इज़ 8 यूनिट्स हमारी सेल हो रही थी, तो अगर अब 5 यूनिट्स सेल हो रही है तो हमारी ये यहाँ पर क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। और जब हमारी डिमांड डिक्रीज़ होएगी तो हमारा कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, दैट इज़ फ्रॉम डी डी टू D dash and D dash. I hope you get it. So the next case we have of the complementary goods. Okay, so complementary goods are the goods which are used together, so they have inverse relationship between them. फर्स्ट केस आता है हमारा इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे है कार, यहाँ पे है हमारा पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल। अब क्या हुआ है, हमारा प्राइस इंक्रीज हो चुका है। सो वी हैव द प्राइसेस ऑफ कार एंड फॉर ये बहुत आप जनरल एग्जांपल ले सकते हो, इसको ये मत करना कि 100 रुपीज़ की कोई कार नहीं आती, इट्स जस्ट अ नंबर आई हैव टेकन। ओके, सो पहले हमारी कार 100 रुपीज़ की थी, तो हमारा पेट्रोल 50 यूनिट्स यूज़ हो रहा था। ठीक है, ये हमारी प्राइस है कार का और ये हमारी डिमांड है पेट्रोल की। अगर हमारा कार का प्राइस बढ़ जाता है तो हमारी पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कार एंड पेट्रोल आर यूज टुगेदर। और जो चीज़ें, अगर सपोज़ मेरी पेन का प्राइस बढ़ गया है, ऑब्वियसली मेरी इंक की डिमांड कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर कार का प्राइस बढ़ गया है तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि हम पेट्रोल यूज़ कैसे करेंगे? कार्स में यूज़ करेंगे। अगर कार्स का ही प्राइस कम हो चुका है तो प्राइस की डिमांड कम होएगी, और अगर कार्स की ही डिमांड कम होएगी तो हमारी पेट्रोल्स की भी डिमांड इन शॉर्ट कम ही होगी। और यहाँ पर भी हमारी क्या डिमांड डिक्रीज़ हो रही है? पेट्रोल की डिमांड डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे पेट्रोल का ही। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो ग्राफ है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारी जो डिमांड है पेट्रोल की वो डिक्रीज़ हुई है, और जब भी हमारी डिमांड डिक्रीज़ होती है तो हम उसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ अ डिक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कार का प्राइस 120 से 100 हो गया, तो पेट्रोल की डिमांड भी हो जाएगी हमारी 25 से 50। क्यों? क्योंकि अगर इसकी प्राइस डिक्रीज़ हो गया है तो इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, और जब कार्स की हमारी डिमांड इंक्रीज़ होएगी हमारी पेट्रोल्स की भी डिमांड इंक्रीज़ होएगी। और इंक्रीज़ इन डिमांड कर्व लिव्स टू द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, दैट इज़ फ्रॉम डी टू डी डैश एंड डी डैश। इट्स वेरी सिंपल। अगर आप ध्यान से समझोगे या अगर आप नॉर्मल भी इसको बैठ कर एक बार रीड आउट करोगे आपको समझ आ जाएगा कि ग्राफ्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऑन द सेम टाइम ये बहुत इजी है समझना। सेकंड हमारा जो ये डिटेल टॉपिक आता है वो हम बात करते हैं नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स की। ओके, सो नॉर्मल गुड्स वी यूजली नॉर्मली बाय द सुपीरियर गुड्स। ओके, तो नॉर्मल गुड्स हमारे होते हैं आर दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम।
अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो हम नॉर्मल गुड्स को ज़्यादा परचेज़ करते हैं। नॉर्मल गुड्स हमारे आ जाते हैं थोड़े अपर क्लास वाली चीज़ें आ जाती हैं, मतलब नॉर्मल आप पैंटलून्स रिलायंस वगैरह में जाएंगे तो अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है 50 लाख पर एनम से 60 लाख पर एनम, तो अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो आप ज़्यादा अच्छे कपड़े खरीदोगे क्योंकि आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है। तो जब हम ज़्यादा अच्छी चीज़ें खरीदते हैं लाइक क्वालिटी में, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स आर क्वालिटी बेस्ड, तो अगर हम ज़्यादा अच्छी इनकम में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी खरीदेंगे तो हम नॉर्मल गुड्स खरीदेंगे। तो जब हम नॉर्मल गुड्स की, और अगर सपोज़ हमारी 50 लाख में हम नॉर्मल गुड्स 50 यूनिट्स खरीदते थे, तो अगर अब जैसे हम रिलायंस में मेरी 50 लाख है, अगर मैं पहले 5 स्कर्ट्स खरीदती थी उन इनकम से, क्योंकि इनकम बहुत जगह यूज़ होती है, तो अगर मैं 5 स्कर्ट्स खरीदती थी तो अब मेरी इनकम इंक्रीज़ हो चुकी है, मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं तो मैं अब ज़्यादा खरीदूँगी, मैं वहाँ के साथ 2 टीज़ भी खरीदाऊँगी, 2 शर्ट्स भी खरीदाऊँगी, क्योंकि मेरी इनकम इंक्रीज़ हो चुकी है। तो इंक्रीज़ इन इनकम लेट्स टू द इंक्रीज़ इन द परचेज ऑफ द नॉर्मल गुड्स। तो इंक्रीज़ इन इनकम की वजह से नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज़ होती है, इसलिए हमारा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है। अगर हमारी वहीं डिक्रीज़ इन इनकम है तो हम अपने एक्सपेंसेस काटने की कोशिश करते हैं, हम थोड़ी सस्ती सस्ती चीज़ें खरीदने की कोशिश करते हैं, थोड़ी क्वालिटी में भी हम 19-20 कर ले, मतलब सह लेते हैं कि चलो कोई नहीं, अब क्योंकि हमारी इनकम नहीं है ना, हम इतना ख़रीद नहीं सकते हैं। तो जब हमारी इनकम डिक्रीज़ होगी तो हम ये छोटे छोटे कटआउट्स करने लग जाते हैं। तो नॉर्मल गुड्स आर एक्सपेंसिव, मतलब इन थोड़े तो अच्छे खासे पैसे होते ही हैं उनके। तो नॉर्मल गुड्स आर एक्सपेंसिव एंड नॉट ओनली एक्सपेंसिव, दे आर वेरी गुड इन क्वालिटी वाइज। तो अगर हमारे पास इतनी इनकम ही नहीं है तो हम नॉर्मल गुड्स की डिमांड ऑब्वियसली कम कर देंगे, हम थोड़ा उसको बाईपास करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी स्ट्रीट मार्केट्स या नॉर्मल मार्केट से ख़रीदने की कोशिश करेंगे। तो हमारी डिक्रीज़ इन इनकम लेट्स टू द लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व एंड इट शिफ्ट फ्रॉम डी टू डी डैश एंड डी डैश। अब यही हमारी बात आती है इन्फीरियर गुड्स की। इन्फीरियर गुड्स आते हैं हमारे बेसिक कंज्यूमिंग गुड्स मतलब जैसे ब्रेड बटर वगैरह, मतलब नॉर्मल, बहुत नॉर्मल गुड्स जो कोई भी बंदा नेसेसिटी में आ जाता है ये एक तरह से। तो यहाँ पर आती है इंक्रीज़ इन इनकम। अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी तो हम ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। मैंने आपको बताया था इनकम इंक्रीज़ होएगी तो इंसान ज़्यादा नॉर्मल गुड्स पे जाएगा। अगर ये ज़्यादा नॉर्मल गुड्स पे जाएगा तो ऑब्वियसली कम इन्फीरियर गुड्स हो जाएंगे। तो कम इन्फीरियर गुड्स की वजह से हमारा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो चुका है, दैट इज़ फ्रॉम डी टू डी डैश एंड डी डैश। सिमिलरली अगर हमारी इनकम डिक्रीज़ होती है, अगर हमारे पास पैसे कम हो रहे हैं तो हम थोड़ी क्वालिटी वगैरह पे थोड़ा कंजूसी कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते। तो तब पैसे नहीं होते तो हम ज़्यादा जाते हैं इन्फीरियर गुड्स में, क्योंकि इन्फीरियर गुड्स आर कंपैरेटिवली चीप, क्वालिटी भी इनकी थोड़ी ठीक ठीक होती है। तो हमारी इनकम अगर डिक्रीज़ हो जाती है तो हम कंज्यूमर गुड्स की डिमांड ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है राइटवर्ड। सो I hope you understand this concept. If you have any doubt, you can drop down your doubts in the comment sections. We will try to resolve it as soon as possible. And also stay tuned for the next chapter, that is the elasticity of demand. Hope to see you there. Thank you. Bye bye.